Let's be real. You can't score 360 in biology by starting 5 days before exam if you haven't touched your NCERT book all over year. But if you have spent the last 12 months, last 6 months, or even last 3 months reading every line of NCERT and you are still terrified that you will forget everything on that day, then listen carefully. I scored 360 out of 360 in biology because I knew how to compile 1 year of knowledge into 5 days plan. It was not about learning new things, it was about strong those topics which I have already read. So hi, this is Ruby Yadav, a second year MBBS student at Government Medical College. I scored 622 marks in my NEET exam. So before starting, let me tell you one thing, that you will have to make a priority list of topics. First of all, you will have to keep high weightage topics, then medium weightage topics, and then low weightage topics. And if you want to score 300 plus in biology, you can skip low weightage topics. So first of all, let's start with high weightage topics. So in this, you will have to keep genetics on top in your priority list. So there are 2 chapters in genetics. First, principles of inheritance and variation. Second, molecular basis of inheritance. In this, you will have to cover everything from first line to last line. Either it is pedigree chart, exceptions, tables, diagrams. You will have to cover everything because only these 2 chapters cover 40 to 50 marks in your NEET exam. Now let's come to biotechnology. It also covers 2 chapters. First, principles and processes. Second, its applications. In this also, you will have to cover every line of NCERT, either it is diagram, table, exception, dates, historical dates, scientist name, everything you will have to cover. You can't skip single line of NCERT because every line is a statement in NEET exam. These 2 chapters are very easy and will give you 40 to 50 marks in your NEET exam. Now let's come to ecology environment. These chapters are also very important and very easy. Mark them star. Read these chapters also from NCERT only. There is no book other than NCERT. NCERT is your Bible. The reason I got 360 out of 360 in biology was my mistake notebook. After every mock test, मेरा जो क्वेश्चन गलत होता था उसका आंसर देखने के साथ साथ मैं अपनी NCERT वापस खोलती थी. जो मेरी लाइन गलत होती थी उसे मैं अपनी मिस्टेक नोटबुक में लिखती थी. ऑन द डे बिफोर नीट एग्जाम मेरे पास इतनी सारी मिस्टेक्स कलेक्ट हो गई थी कि आई ओनली रीड दोज मिस्टेक्स. आई डिडंट रीड NCERT एंड आई डिडंट रिपीट एनी मिस्टेक इन माई नीट एग्जाम एंड गॉट 360 out of 360. Now let's come to human reproduction, reproductive health and human health and disease. These chapters are also very important. इनको भी आपको NCERT से ही पढ़ना है. NCERT की फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक याद होनी चाहिए आपको. टेबल्स, एक्सेप्शंस, डायग्राम्स, इमेजेस, सब कुछ आपकी टिप्स पे होना चाहिए बिकॉज एवरी सिंगल चैप्टर विल गिव यू 16 मार्क्स. इन चैप्टर्स के भी आपको मल्टीपल PYQ सॉल्व करने हैं. मिनिमम पर डे 75 PYQ सॉल्व करने हैं. 75 से ज़्यादा भी कर सकते हो पर मिनिमम 75 तो करने ही करने हैं. Now let's come to cell, the unit of life. This chapter is also very important and very easy. This chapter cover 4 to 5 MCQs and will give you 15 to 20 marks in your NEET exam. देन इसके बाद आपको कवर करना है प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ये चैप्टर्स थोड़े टफ हैं क्योंकि इनमें एग्जांपल्स ज़्यादा हैं, याद करने में प्रॉब्लम होती है. तो इनको आपको डायरेक्टली याद नहीं करना है, इनको आपको निमोनिक से याद करना है. एग्जांपल्स आप निमोनिक से याद करोगे तो आपको ईजी रहेगा. हर एक चीज़ के निमोनिक आपके पास होने चाहिए. निमोनिक से याद करोगे तभी एग्जाम डे तक याद रहेगा, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि कौन से टॉपिक में कौन सा एग्जाम्पल था. नाउ लेट्स कम टू लो वेटेज टॉपिक्स. तो इन टॉपिक्स की आपको सिर्फ NCERT की हाईलाइटेड लाइंस पढ़नी है. हर एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है. जो आपने पहले से हाईलाइट करके रखी हैं उन्हीं लाइंस पे फोकस कीजिए. PYQ करिए, इनके क्वेश्चन सॉल्व करिए तो आपको ये चैप्टर्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे. और इन चैप्टर से एक एक दो क्वेश्चन आते हैं लेकिन फिर भी आपको स्किप नहीं करना है. अगर आप 300 स्कोर करना चाहते हो तो आप इन चैप्टर्स को स्किप कर सकते हो. अगर आपको 330 प्लस या 360 स्कोर करना है तो आप इन चैप्टर्स को स्किप नहीं कर सकते. इनको आपको NCERT की हाईलाइटेड लाइंस पढ़नी पड़ेंगी, PYQs करने पड़ेंगे, तभी आपके 330 प्लस या 360 स्कोर हो पाएंगे. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी. ह्यूमन फिजियोलॉजी में पूरे 6 चैप्टर्स हैं. इन 6 चैप्टर्स में से हर एक चैप्टर एक एक क्वेश्चन को कवर करता है. मतलब हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 भी आ सकते हैं. अगर आपके पास टाइम है, अच्छे से टाइम है, आप कर सकते हो कवर तो आप करिए क्योंकि 6 चैप्टर्स हैं, सिर्फ 6 क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को दे रहा है तो मतलब टाइम टेकिंग होंगी. तो अगर आपके पास टाइम है तो ही करना है इन चैप्टर्स को, नहीं तो आप इनको स्किप कर सकते हो. तो इतना मतलब लोड मत लो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी कैसे छोड़ सकते हैं हम, क्योंकि एक एक क्वेश्चन ही आता है इनमें से. आपका अगर बाकी चैप्टर जो मैंने बताए वो प्रो हैं तो आप इनको स्किप कर सकते हो. एंड आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी स्किप करने के बाद भी 300 आराम से स्कोर आ सकते हैं. देन प्लांट फिजियोलॉजी में टोटल 3 चैप्टर्स हैं. इन 3 चैप्टर्स को आपको कवर करना है क्योंकि आपके ये चैप्टर्स बहुत लेंदी नहीं हैं, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं.
तो आपको टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा कवर करने में, एंड दीज विल गिव यू 15 to 20 मार्क्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट आपको बायो का अलग से नहीं देना है, इसको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के साथ ही देना है, क्योंकि अगर आप अलग से मॉक टेस्ट दोगे बायो का तो आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, और फुल सिलेबस के साथ दोगे तो आपके मार्क्स कम आएंगे और आप अपने आप को जज नहीं कर पाओगे। तो इसका मॉक टेस्ट अलग से नहीं देना है। मॉक टेस्ट देने के बाद मिस्टेक्स का अच्छे से एनालिसिस करना है, उन्हें रिपीट नहीं होने देना है,